Good afternoon. I'm CA Priyam Shah, and we in the morning we had some great two sessions about all the GST Act and Income Tax Act. So just to take care that you don't sleep in the afternoon, we have got an interesting session with Mr. CA Pankaj Tibrewal, who himself has very rich experience of almost 2 decades in financial markets. Pankaj manages schemes such as Kotak Emerging Equity, Kotak Small, erstwhile Kotak Mid Cap Fund, and Kotak Equity Hybrid and Kotak Business Cycle Fund at Kotak AMC, where he is managing almost 40,000 crores of equity assets. In his earlier stint at Principal Mutual Fund, Pankaj managed schemes like Principal Emerging Blue Chip, Principal Tax Saver, and MIPs. Pankaj has been featured in the top 10 fund managers in India for 6 consecutive years from 2016 to 2021 as per Outlook Business, which is an amazing achievement, sir. He also featured in the top fund managers in India by Economic Times and Morning Star for 6 years from 2016 to 2022. A commerce graduate from St. Xavier's College, Kolkata, CA Pankaj Tibrewal also holds a master's degree in finance from Manchester University. His hobbies include listening to Hindi music, traveling, and reading. Sir, welcome to Ahmedabad. Thank you. I'll request CA Nirav Agrawal to felicitate sir and welcome him for the session. So good afternoon. गुड आफ्टरनून. आई नो खाना पीना खा के आए हैं आप लोग. मैं भूखा हूँ अभी, बट इंटरेस्टिंग सेशन करेंगे. आई हैव अ टाइम लिमिट, सो विल ट्राई एंड वाइंड अप विद इन टाइम सो दैट द इंटायर नेक्स्ट शेड्यूल ऑल्सो पिक्स अप ऑन टाइम. थोड़ी सी करेक्शन मेरे इंट्रोडक्शन में. मैं कोटक में 14 साल था और अभी 15 दिन पहले I have ventured out to start something on my own. So soon you will see my fund coming in. But I think, more than 2 decades of experience, I think काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने को है. बट इस चर्चे को अपने 2 भागों में डिवाइड करते हैं. एक है स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म, देश में क्या हो रहा है. हिंदी इंग्लिश चलेगा ना? देश में क्या हो रहा है. एंड द सेकेंड पार्ट विल बी ऑब्वियसली इंडेक्स एट 21,000 निफ्टी, क्या करने का है. एंड आई थिंक you will be able to understand in both the things, near term as well as medium to long term. So friends, there are 4 big mega trends playing at work. And जब मैं विश्व की सारी कंट्रियों को देखता हूँ तो ये जो 4 ब्रॉड ट्रेंड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो कहीं ना कहीं कोई कंट्री 1 में टिक मार्क है, कोई कंट्री 2 में टिक मार्क है. बट जब मैं इंडिया में वो चारों चीज़ों को देखता हूँ तो चारों में टिक मार्क है. एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक सिचुएशन वी आर इन वेयर नोबडी एल्स इज देयर इन द वर्ल्ड. ओके, लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट अ बिग सोशल चेंज एंड द 4 Ds. The 4 Ds, the first is on the demographics. सबको पता है एजिंग, सबको पता है अपना कंट्री on a young age population, but there are 3-4 very important things which are changing the social fabric of the country right now as we speak. Last 12-13 सालों में सबसे बड़ी एक important चीज़ हुई है कि फीमेल फीटिसाइड, जो बच्चियों को जो हत्या होती थी, that has dropped drastically down in India due to better education. And देखा गया है कि वुमेन आर मोर प्रोडक्टिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वो हाउस होल्ड भी संभालती है, अगर काम कर रही हैं तो काम भी करती है. एंड दैट इन माई व्यू इज़ अ बिग चेंज, बिकॉज जो जेंडर रेशियो अपने कंट्री में था वो काफ़ी अनइक्वल था.
एंड जो चीज़ कई देशों में 25-30 साल लगती है जेंडर रेशियो को चेंज होने में, हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट है लास्ट 10-12 सालों में, बिकॉज फीमेल फीटिसाइड हैज़ कम डाउन, इन्फेंट मोर्टेलिटी हैज़ कम डाउन, एंड दैट इज़ लीडिंग टू girls going to education better and contributing to the productivity of the country. That's very, very big change which is happening directionally in the country. The second big change, friends, is that आपको ये नहीं पता होगा, but for the first time the fertility rate in the country is come below the replacement rate in the country. आप सब सोच रहे होंगे ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, एंड आई लिंक एवरीथिंग सो दैट एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. फर्टिलिटी रेट हैज़ कम डाउन बिलो द रिप्लेसमेंट रेट. रिप्लेसमेंट रेट अपना 2.1 है देश में, एंड द फर्टिलिटी रेट नाउ इज 2. साउथ इंडिया में 1.6, 1.7, नॉर्थ इंडिया में स्टिल 2.2, 2.3, एवरेज में 2 के कम आ गया है, विच मीन्स अगर आप लास्ट 50 सालों में देखो तो हमारी एक्सेस फर्टिलिटी रेट होने के कारण द किड्स वर देयर, मोर किड्स वर देयर, एंड द सेम रिसोर्स वॉज यूज टू केटर टू मोर किड्स. एंड बच्चे जब तक 18 साल के नहीं होते हैं तब तक वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं देश के लिए फ्रॉम अ ओवरऑल रिसोर्स परस्पेक्टिव. बट जब कोई देश में फर्टिलिटी रेट्स कम डाउन, 25-30 साल बाद उसको एजिंग का प्रॉब्लम होगा, जो आज चाइना में हो रहा है कि फर्स्ट टाइम चाइना में पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी. बट वो 25 साल में, 20-25 साल में आपकी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है वो बच्चों में कम खर्चा होती है और बड़ों में ज़्यादा खर्चा होती है, एंड दैट मीन्स योर पर कैपिटा GDP एक्सपैंड्स एट अ फास्टर पेस. आर यू गाइज विथ मी? आज अपना पर कैपिटा GDP $2400-2500 के आसपास है, राइट? हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की जो बात करते हैं वो एब्सोल्यूट नंबर है, लेकिन पर कैपिटा GDP बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाइनली वही हमारे काफ़ी चीज़ों को, कैटेगरीज को डिफाइन करेगी. और मेरा ये मानना है कि लोग सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट 15-20 साल में 170 करोड़ की आबादी वाली कंट्री हो जाएंगे, बट जिस हिसाब से मैं सोशल फैब्रिक चेंज होता हुआ देख रहा हूँ, मुझे लगता है 155-160 पर जाएंगे अपने. इसका मतलब पर कैपिटा GDP विल एक्सपैंड एट अ मच फास्टर पेस, एंड दैट मीन्स यू विल हैव मोर इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल, एंड दैट विल शो इन वेरियस कैटेगरीज अक्रॉस द कंट्री एंड मार्केट. आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ, ये कोई नहीं बात करेगा आपसे. मैं आता हूँ, क्वेश्चन अपने लेते हैं, एक फ्लो में चलने दीजिए. तो ये जो डेमोग्राफिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, दिस विल लीड टू बेटर पर कैपिटा GDP ग्रोथ. 25-30 साल बाद आएगा वो एजिंग का प्रॉब्लम, हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन डिक्लाइन आएगी, बिकॉज फर्टिलिटी रेट इज बिलो द रिप्लेसमेंट रेट नाउ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. फीमेल फीटिसाइड हैज़ कम डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जेंडर रेशियो इज इम्प्रूविंग इन द कंट्री, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये तीनों चारों को आप डेमोग्राफिक के साथ कंबाइन करो तो एलन मस्क ने बोला था कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ प्रॉब्लम बट एजिंग इज़ अ बिगर प्रॉब्लम. बिकॉज अगर एजिंग है तो ग्रोथ आप वर्ल्ड में लाओगे कहाँ से? एंड इन दैट स्कोर इफ यू लुक अक्रॉस द वर्ल्ड, जापान एजिंग प्रॉब्लम, चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर दे हैड सीन अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, जो 30 साल उन्होंने चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ देखा. यूरोप एजिंग प्रॉब्लम, US मीडियन एज. सो इंडिया इज इन अ यूनिक पोजिशन जहाँ यंग डेमोग्राफिक्स तो है ही, प्लस जो सोशल फैब्रिक चेंज बोला दैट विल लीड टू फर्दर एक्सपेंशन ऑफ पर कैपिटा GDP इन अ फास्टर पेस. ओके, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. सो 1D which is important is demographics. The second D, which is, friends, I think is changing the entire entrepreneurship in India, is deglobalization. लास्ट 30-40 साल हमने क्या देखा? चाइना बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड को वो लोएस्ट कॉस्ट माल सप्लाई करने लगा.
नाउ लास्ट 4-5 साल में द जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन हैज चेंज्ड इन द वर्ल्ड. लेट्स एक्सेप्ट इट. फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स डी ग्लोबलाइजेशन. आज यूएस चाइना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, यूएस रशिया एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में अपना टेंशन चल रहा है, ताइवान चाइना का अलग प्रेशर चल रहा है. एंड एवरी कंट्री कोविड के बाद ये जान गई है कि सप्लाई चेन इज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वर्ल्ड. और हर कंपनी अपने आप को चाइना से डीरिस्क करने की कोशिश कर रही है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप में कौन सी है, आप बताएं मुझे. एप्पल, राइट. $3 ट्रिलियन मार्केट कैप प्लस. आज एप्पल का सबसे बड़ा मार्केट प्लस उसका कंपोनेंट सप्लायर कौन है? चाइना. आज आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल्स को आईफोन यूज करने से बैन कर दिया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस. और आज सिचुएशन ये है कि जो भी हाई लेवल मीटिंग होती है चाइना में, इफ़ यू हैव एन आईफोन एज अ visitor or as a person working in Chinese government, you have to deposit your phone outside before you enter into the meeting, right? US गवर्नमेंट को क्या वरी है? वहाँ एक सिंगल डिक्टेटर है, जाइपिंग. कल उसने बोल दिया कि आईफोन विल नॉट बी सोल्ड इन चाइना एंड नो producer can supply to iPhone in the world. What will happen to Apple? The stock price will crash. If Apple stock price crash, what will happen to the market of US? Crash. And everybody has a saving invested in US equity market. 70%, 80% equity participation है वहाँ पर. What will happen? Like that. Today, the biggest worry of Washington is that all the large companies of US are so much dependent on China that अगर कल जाइपिंग ने कुछ करा तो the direct impact will be felt on US market, US companies, US economy. And their dictate is कि आप जितना fast अपने आप को de-risk कर पाओ in supply chain as well as market, it will be good for all of us. It's not because Apple wants to come into India. It's Washington which is asking Apple to do that. And for the first time in the history of Apple, उन्होंने 25% लिख दिया एनुअल रिपोर्ट में कि हमें यूएस चाइना के बाहर अपना प्रोडक्शन करना है. एंड दिस इज द मेजर बेनिफिशियरी, द कंट्री विच इज बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट इज इंडिया. सो जो डी ग्लोबलाइजेशन, जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है वर्ल्ड में, ट्रस्ट मी, एवरी लार्ज कंपनी विल कम एंड सेट अप आवर ऑपरेशंस आउट हियर बिकॉज द मैन पावर, the entire resource, the laws, everything, they find it suitable, and India itself is a very large market. Friends, अगर कभी आपको मौका मिले तो श्री सिटी जरूर जाइएगा. आंध्रा में और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि किस तरह 10,000 एकड़ का जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां अपना सेटअप कर रहे हैं. फॉक्सकॉन आ गया, विस्ट्रॉन आ गया, पेजिट्रॉन आ गया, ये तीन जो एप्पल को सप्लाई करते हैं. अब तीनों आने के बाद जो कैमरा वाला है, माइक वाला है, कीबोर्ड वाला है, एवरी लार्ज सप्लायर टू फॉक्सकॉन, पेजिट्रॉन, विस्ट्रॉन आर नाउ सेटिंग अप द एंटायर सप्लाई चेन ऑपरेशन. एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट कि एप्पल 14 and Apple 15 has started being production in India. And the same thing, in my view, you will see with Samsung, different Chinese producers, and so, Motorola, and so forth. So my belief is that India will become the hub of mobile and electronic production, as you see in the next 5 years. I'll give you another small example. ACs. 4 साल पहले तक 80% कंपोनेंट हम इंपोर्ट करते थे, 20% हमारा वैल्यू ऐड होता था. इस साल मोटा मोटी हम 1 करोड़ एसी बेचेंगे, स्प्लिट विंडो का दोनों कंबाइंड. 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बोला जो कंप्रेसर है, इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है, आपको देश में बनाना होगा, अदरवाइज देयर इज अ इंपोर्ट ड्यूटी. फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट 2 years, टेक माई वर्ड दैट ऑलमोस्ट 70 to 80% will be produced in India,
and only 20% will be imported from outside. So one is export opportunity, one is import opportunity. अभी मैं एक कंपनी से मिल के आ रहा हूँ आपके अहमदाबाद में, जो पाइप्स में है, स्टेनलेस ट्यूब्स में है, and that company is saying the kind of demand I am seeing in export market I have not seen for very very long time. सऊदी पूरा अपना नया कंट्री रिवैम्प कर रहा है, उसको दुबई बनना है. मिडिल ईस्ट में ऑयल एंड गैस की दाम $80-90 होने के कारण वो लोग केपेक्स कर रहे हैं, उसको बेनिफिट आ रहा है. और यूरोप की जितनी हाई कॉस्ट फैसिलिटी थी जो पहले उनको सप्लाई करती थी, स्टेनलेस ट्यूब, पाइप, फोर्जिंग, सब बंद हो गई है. और यूक्रेन वॉर के बाद तो और भी हालत ख़राब है. So the point I am trying to say is that there is a big, large opportunity sitting inside from the deglobalization, where every big sector company is looking to set up the manufacturing hub in the country. And it's upon us how we execute. अगर हम इसमें सेल्फ गोल करने जाए तो गॉड सेव अस, बट अगर हम इसको ठीक से एग्जीक्यूट कर पाए, आने वाला नेक्स्ट 10 साल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बहुत गोल्डन पीरियड रहने वाला है. केमिकल्स में हमने देखा, हमने फार्मा में देखा, हम आज डिफेंस में देख रहे हैं. एंड आई विल टेक 2 minutes ऑन दैट. फ्रेंड्स, 3 साल पहले तक, ऑलमोस्ट फॉर 73-74 years, वी वर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड. 70 से 80 बिलियन डॉलर डिफेंस की रिक्वायरमेंट हमारी है, और सब हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे. हमने बोला नहीं, PLI प्लस इंडिजिनाइजेशन, वी विल डू दैट. आज जब मैं कंपनियों से बात करता हूँ, आप शॉक हो जाओगे. इंपोर्ट जो कर रहे थे उसका तो जो डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है. आज डिफेंस सेक्टर सबसे हॉट केक है पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज लास्ट 30 साल से कोई वॉर हुआ ही नहीं था, तो लोगों ने अपने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं. फिर रशिया यूक्रेन के बाद काफ़ी कंट्री जागी कि ऐसा भी हो सकता है. एंड नाउ इजराइल और हमस के कारण नाउ दे आर एवरीबडी इज सरप्राइज शॉक्ड कि हमारा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट लास्ट 5-10 साल में, 20 साल में हुआ ही नहीं. सो एवरीबडी इज लुकिंग टू अप द एक्सपेंडिचर. व्हेन आई स्पीक टू कंपनीज, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 1-2 कंपनी सपोज जो एक्सप्लोजिव बनाती है, प्रोपेलेंट बनाती है, पिनाका, अग्नि, आकाश मिसाइल बनाती है, वो गवर्नमेंट के लिए बनाई थी, उन्होंने फैक्ट्री डाला. गवर्नमेंट ऑर्डर दे रहा है या आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑलरेडी आ गया उनके पास. अर्मेनिया ने 400 करोड़ का ऑर्डर दे दिया, या किसी और कंट्री ने 500 करोड़ का ऑर्डर दे दिया. द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से इज द सेक्टर विच वी नेवर थॉट एज अ बिलीफ ऑल्सो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हम कर सकते हैं डोमेस्टिक के लिए ओपन करना हमने चालू किया, पॉलिसीज बनाई, बट सामने एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी आ गया. And this is because of the geopolitical situation. So friends, the deglobalization which is happening right in front, I think it's a 20-30 year trend. Every country is looking inward or looking at friendly offshoring to countries where they think can do better. And I think India has a unique advantage in that space. And every sector you will see large companies, steel ho, chemicals ho, फार्मा हो, ऑटो हो, डिफेंस हो, every company will have a shop in the country, and I think this is a very big trend where India has a tick mark again. So second D, first D demographics, second D deglobalization, and the third D, which I think will change the nature of the country. और 10 साल बाद आप लिख के रखो, जब आप मुड़ के देखोगे, जैसे आज हम मुड़ के देखते हैं, I don't know how many of you were there, but 1991 comes as a big event for the economy, right? मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी खोला, डीरेगुलेट किया सब कुछ को, एंड देयर वेयर द ग्रोथ स्टार्टेड. एंड देन हर्षद मेहता हुआ, फिर इकोनॉमी आए, फिर केतन पारेख हुआ, 2000 का टेक बबल हुआ, बट इकोनॉमी रेगुलेशन से डीरेगुलेशन की तरफ मूव हुई. 10-15 साल बाद जब आप रिफ्लेक्ट करोगे अपने आप को, यू विल for sure say that COVID was the turning point in India's economy. And I'll tell you why. Friends, हम सब ने कोविड के थ्रू गुजरा, but the way you saw that one Aadhaar and one mobile, the whole country till the lowest taluka was vaccinated,
is nothing less than a magic. Right? 100 crore bank account, 100 crore Aadhaar and 100 crore mobile connection is the deadliest cocktail India has got. This cocktail is not available to anybody. आज भी अगर आप यूएस जाओ, एक चेक को डिपॉजिट करने में आपको 2 दिन लगता है, और देयर इज नो IMPS, देयर इज नो NEFT कि 2 सेकेंड में आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा है. दिस इज द लग्जरी वी ऑल आर एंजॉइंग राइट नाउ. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, हमारा 4% शेयर है जीडीपी में. $3.5-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व की इकोनॉमी $100 ट्रिलियन, 4% शेयर. बट डिजिटल ट्रांजैक्शन में वी हैव अ 45% शेयर. 45% of world's digital transaction is happening in India. And friends, this is the changing game which happened post-COVID. आज इस हॉल में मैं अगर पूछूं आपसे, सर अहमदाबाद में हूँ, कैश का मार्केट है, कितने लोगों के पास 5,000 रुपया कैश होगा? प्लीज़ हाथ खड़ा करिए, मैं कैश नहीं लूँगा आपसे, प्रॉमिस करता हूँ. किसने के पास होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 30. यही अगर मैं 4 साल पहले लेता, 80% के पास. क्यों? बिकॉज यू थिंक योर मोबाइल इज योर कैश, यू थिंक योर कार्ड इज योर कैश. फ्रेंड्स, दिस इज द बिगेस्ट माइंड चेंज जो हम 50 साल में सब पॉलिसी लगा के नहीं कर पाए, जो कोविड ने कर दिया, और हर चीज लिंक कर दिया है. आप तो सब चार्टेड अकाउंटेंट हो, रिटर्न फाइलिंग में आप ₹1 का डिविडेंड भूल गए होगे, क्लाइंट आपका ₹1 का डिविडेंड भूल गया होगा, बट गवर्नमेंट आपको भूलने नहीं दे रही है. थिंक अबाउट इट. आज आप यहां कहीं भी मिठाई दुकान में जाओ, पहले 70-80% रोकड़ा में काम होता था, कैश में काम होता था. आज वो सामने जाके पेटीएम कर रहा है, जीपे कर रहा है, 50 से 60% उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट हिट कर रहा है. आज वो नहीं टैक्स पे करेगा, 2 साल बाद IT डिपार्टमेंट उससे टैक्स पे करवाएगी, क्योंकि पक्के में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कच्चे में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. एंड दैट्स द रीजन इन द लास्ट 2 years whatever government has budgeted for tax collection, we are exceeding the target. Why? Because everything is got linked through the base called Aadhaar, which is the identification. उसके ऊपर डिजी-लॉकर, उसके ऊपर आपका the entire payment system, which is IMPS, gateway, everything is there. And उसके ऊपर 2 revolutionary product आने वाले इंडिया में, which will change the way India shops, which will change the way India lends. ओकन करके आ रहा है एक प्रोडक्ट, ओपन क्रेडिट एरिया नेटवर्क. आपको खाली रजिस्टर करना है. आज कोई वड़ा पाव वाला है या कोई डोसा वाला है, उसके पास कोई एसेट नहीं है, बट उसके डेली का गल्ला का कैश फ्लो है. लेकिन आज वो बैंक के पास जाएगा, उसको लोन कोई नहीं देगा. आज वो ओकन के प्लेटफॉर्म पर जाएगा, अपना आधार कार्ड, अपना बाकी सब डिटेल डालेगा, उसकी कैश फ्लो के ऊपर अगर वो पेटीएम से पैसा ले रहा है, जीपे से पैसा ले रहा है, उसके बैंक अकाउंट में बैलेंसेस दिखेंगे. एंड इमीडिएटली विद इन 2 hours पीपल विल लाइन अप टू लेंड टू हिम. ऑनलाइन उसका ट्रांजैक्शन हुआ, विद इन 2-3 घंटा में पैसा ट्रांसफर, ओकन. And the second big thing which is going to happen in next 12 months is ONDC, the way India shops. आज आप जाओगे तो Amazon के प्लेटफॉर्म में, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म में जो आपको दिखता है, आपको वही खरीदना है. उनके सप्लायर है, उनका नेटवर्क है, आपको वही खरीदना है. ONDC में द ओनली शॉपकीपर हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ. आपको ड्राई फ्रूट कश्मीर का खाना है, आपको वो दुकान पता है श्रीनगर वाली, आप खाली ONDC में जाओ, उसको ऑर्डर प्लेस करो, वो अपने आप अपना कोई वेंडर को जिससे डिलीवरी करानी है करा के आपके घर पर 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपके ड्राई फ्रूट श्रीनगर के आ जाएंगे. द वे डिजिटली इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, फ्रेंड्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीबडी, ये जो व्यवहार में जो चेंज आया है सब यंगस्टर्स में, हम में, ये चेंज वापस नहीं होने वाला है. एंड कच्चा पक्का धीरे 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 देखोगे आप कम होता जाएगा. एंड दैट्स पैरेलल इकोनॉमी विच वॉज रनिंग विल कन्वर्ट इन टू द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी. एंड दैट्स वाई द GST कलेक्शन, दैट्स वाई द इनकम टैक्स कलेक्शन इज एक्सीडिंग पोस्ट कोविड. वाई? बिकॉज आपने सब जगह से लूप होल बंद कर दिया एंड डिजिटली सबको टाई अप कर दिया.
फ्रेंड्स इसको आप मतलब हल्के में मत लेना. The third D is digitalization, and I think it's a massive, massive game changer for a country like India with a population of 140 crores. Okay? This is the third D. The fourth D, obviously, is decarbonization. And I think the world understands the problem of global warming. And CA का ये pet chapter है sustainability. 3 P's होते थे. In order of प्रेफरेंस पहले था प्रॉफिट, फिर पीपल, फिर प्लैनेट. अब वो रिवर्स हो रहा है. प्लैनेट, पीपल, फिर प्रॉफिट. अगर प्लैनेट ही ठीक नहीं रहा तो पीपल नहीं रहेंगे, पीपल ही नहीं रहे तो प्रॉफिट कहाँ से बनाओगे आप? सो आई थिंक दिस मेजर चेंज ऑफ 3 P's, आई थिंक इंडिया इज क्लियरली अ बेनिफिशरी अगेन, बिकॉज हमारे पास कोई नेटवर्क ही नहीं. हम पूरा नए सिरे से नेटवर्क खड़ा करेंगे, चाहे वो सोलर में हो, विंड में हो, या आने वाले समय में मुझे लगता है राइट टू विन इज हाइड्रोजन. एंड नेक्स्ट 10 साल में आप देखोगे अलग अलग कंपनियां अलग अलग जगह से निकलेगी जो हाइड्रोजन सेक्टर को केटर करेंगी, एंड दे विल बी द नेक्स्ट वेल्थ क्रिएटर्स इन द कंट्री विच वी हैव नेवर सीन. सो डीकार्बनाइजेशन, द वर्ल्ड हैज प्लेज्ड $70 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा नेक्स्ट 10 से 15 साल में, एंड कैन वी बी अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ दैट. एंड यू आर ऑलरेडी सीइंग कि पावर सेक्टर में क्या हालचाल है, क्योंकि 10 साल से हमने थर्मल में इन्वेस्ट नहीं किया. जीडीपी ग्रो करते गई, डिमांड ग्रो करते गया, बट सप्लाई साइड में ज़्यादा सप्लाई नहीं आई, और उसका प्राइस आज हम पे कर रहे हैं. आप 4 बजे के बाद IEX के वेबसाइट में जाओ, रोज़ 10 रुपया का सर्किट है पावर में. 10 रुपये का पावर का कैप है इंडिया में अभी, वो 10 रुपये पर स्पॉट पावर बिक रहा है 4 बजे के बाद, बिकॉज इंडिया में सबसे ज़्यादा पीक पावर कंजम्पशन शाम को होती है, इवनिंग में. फैक्ट्रीज भी चलती हैं, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट, सो एंड सो फोर्थ. सो आई थिंक decarbonization, again we have a tick mark there, because we will invest in the entire infrastructure right from almost nothing, and many companies will come out as a beneficiary of that. So friends, when I look at these 4 Ds, and along with that offshoring, which is a big positive. कोई नहीं सोचा था CA के एक्सपोर्ट विल बिकम अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एक्सपोर्ट. हम सब IT सोचते थे, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, लीगल वर्क. I don't know how many of you know, Deloitte this year will have 2 lakh employees in the country. 2 lakh employees. Because they have a large back office catering to all the consulting, legal and everything world to the rest of the world. So I think this is a very big game changing, and during COVID we increased our market share in the offshoring market by 60 to 80 basis point. It's a number आपको छोटा लगेगा, but जो size of the opportunity है उसमें 60-80 basis point is a big number. IT में हम अच्छा कर रहे थे, फार्मेसी में अच्छा कर रहे थे, but all the knowledge, know-how, CA work, management consultancy, legal, अब यहाँ से outsource होने लगी हैं, and that's a very large one. So I think when I combine all these things together, along with the view that May 24 should not be a challenge, right? Friends, I think we are sitting on a very strong wicket as far relatively world is concerned. World में problem आएगा, हमें भी आएगा, but आज जिस state में हमारी problem will be much lower than what the world will see. So this is the broader picture. जब भी आपको तकलीफ लगे ना, लास्ट 15 साल को देख लेना. आपने सब कुछ देखा, कांग्रेस देखा, कोल स्कैम देखा, पिग्स देखा, यूरोप का प्रॉब्लम देखा, GST देखा, डीमॉन देखा, लोअर ग्रोथ देखा, फाइनली कोविड देखा, लेकिन मार्केट को आपने 8,000 सेंसेक्स से 70,000 जाते हुए देखा. सो मार्केट्स विल कीप क्रॉसिंग द वॉल ऑफ वरी एवरी टाइम वी हैव, because the broader picture is changing in our favor. Manufacturing after long time is coming. 1955 की GDP जाके देखो, 60% एग्रीकल्चर था, 15% मैन्युफैक्चरिंग था, और रेस्ट वॉज सर्विसेज. इतने सालों बाद मैन्युफैक्चरिंग वहीं का वहीं है, 15-18%. GDP और सर्विसेज ने अपने जगह को स्वैप कर लिया. आज सर्विसेज इज 65%, एग्रीकल्चर इज 15 to 16%. तो हमने मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं किया. एंड दिस इज द टाइम विच वर्ल्ड इज प्रोवाइडिंग अस दैट अपॉर्चुनिटी.
Hopefully we don't do any self goal and we achieve that big trend which is playing in favor of us. And I can tell you sector after sector. मैं इस टॉपिक पर 3-4 घंटे बात कर सकता हूँ, बिकॉज ग्राउंड में मैंने जो इस बार एंटरप्रेनर के जज्बे को देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखा 15 सालों 18 सालों में. Every entrepreneur this time at the ground, tier 2, tier 3, tier 4 cities is so positive कि भाई ऑर्डर आ रही है, काम है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% पर चल रहा है. दैट इज वॉट मार्केट्स आर रिफ्लेक्टिंग. आर यू गाइज विथ मी? हाँ, नहीं आ रहा ठीक से? हाँ, ओके. मैं एकदम साधारण तरीके से आप लोग को स्टिच करके एक बता रहा हूँ कि इस तरह आप ब्रॉडर पिक्चर को देखो. कभी भी ब्रॉडर पिक्चर को मत मिस आउट करना, नहीं तो यू विल मिस आउट द लार्जर गेम. एंड दैट्स हाउ I have learned in 22 years in market that broader picture आपके सामने होना बहुत जरूरी है. So that's very important. Now coming to very near term, friends. I think near term में markets have rallied, 3 साल की तेजी है, but ये एक अलग breed of investors आ रहे हैं जिन्होंने कभी मंदी देखी नहीं है 2020 के बाद. और वहाँ मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि greed is clearly visible on the street right now. इंडेक्स है 21,000, स्मॉल कैप मिड कैप्स में आग लगी हुई है, बट कहीं ना कहीं यहाँ वन हैज़ टू बी केयरफुल. आई हैव सीन 4 साइकिल्स. एवरी टाइम वन बिलीव्स दिस टाइम इज डिफरेंट, द 3 डेंजरस वर्ड्स दिस टाइम इज डिफरेंट, वो कभी डिफरेंट नहीं होता है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट मार्केट पर्सपेक्टिव से. SME में IPO में 70 करोड़ का IPO है, 19,000 करोड़ का बिड जा रहा है. पता नहीं क्या हो रहा है. काफ़ी प्रमोटर्स को मैं दूर तक भी नहीं छूऊंगा, उनको मार्केट पैसा दे के जा रहा है. कैलेंडर ईयर 23 8 दिन बाकी हैं, 9 दिन बाकी हैं. $12 बिलियन का माल प्रमोटर्स ने बेच दिया या PE इन्वेस्टर्स ने बेच दिया है. $12 बिलियन. तो एक फोमो वाली फीलिंग है सब में. और इलेक्शन के बाद ये जो रैली आई स्टेट इलेक्शंस के बाद, तो सब वेट कर रहे थे कि नीचे में मिलेगा, नीचे में मिलेगा. नीचे मिला नहीं. मार्केट टाइमिंग ऑलवेज यू नो. एंड मार्केट्स रैलीड बाय ऑलमोस्ट 1,500-2,000 पॉइंट्स, सेंसेक्स. एंड एवरीवेयर पीपल आर फीलिंग लेफ्ट आउट, बिकॉज नाउ मार्केट इज प्राइसिंग कि लार्ज प्रोबेबिलिटी 97, 98, 99 जो प्रोबेबिलिटी बोल लो, दिस गवर्नमेंट इज कमिंग बैक टू पावर इन May 2024, right? And that's what market has started to price in before that only, कि वो uncertainty जो है कहीं ना कहीं कम हो रही है और मार्केट उसको प्राइस कर रही है. But friends, this is the time to be careful. This is the time to assess risk in the portfolio, because हमने देखा था 2017 में भी, 2007 में भी और 2000 में भी कि जब सब कुछ अच्छा लगता है ना, that's the time to be a lot careful. आज कोई कैश फ्लो देख ही नहीं रहा है. आज खाली स्टोरी, नरेटिव और P&L पर गेम चल रहा है. आप सब CEO हो. फाइनली टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी एंड कैश इन बैंक इज रियलिटी. जो धंधा टॉप लाइन के लिए ग्रो हुआ वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ अगर वो कन्वर्ट नहीं करता है प्रॉफिट में. और वो प्रॉफिट अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं अगर वो कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं होता. I know sectors where 5-5 साल तक companies have not made operating cash flow. Basic hygiene. The operating cash flow conversion is negative. They are making negative operating cash flow. Market उन्हें 15,000 करोड़ का market cap दे रहा है, 20,000 करोड़ का, क्योंकि narrative है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सेक्टर में इतनी बड़ी opportunity है. बट मैं तो कैश फ्लो वाला आदमी हूँ, मुझे कैश फ्लो बैलेंस शीट नहीं दिखता है तो मैं दूर भागता हूँ. बिकॉज अगर आप 20% से ग्रो कर रहे हो और आपका इंटरनल अक्रूवल सपोर्ट नहीं कर रहा उस ग्रोथ को, तो आप क्या करोगे? या तो आप बोरो करोगे या अपने इक्विटी को डाइल्यूट करोगे टू फंड दैट ग्रोथ. एंड कितने तक कर पाओगे आप? या तो डेट हैवी बैलेंस शीट हो जाएगी या इक्विटी डाइल्यूट कर करके रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी खराब हो जाएगी. सो फ्रेंड्स, think about this risk in the market today, where low free float stocks, small caps में 2% free float है कोई एक PSU में, काफ़ी सारे PSUs हैं, 1%, 2%, 5% लोग चला रहे हैं. एक फर्टिलाइज़र कंपनी है गवर्नमेंट की, वहाँ पर
the market cap is twice or thrice of more than the largest agro fertilizer company in the private sector, and the profitability is maybe 1/3, 1/4 of that. तो काफ़ी जगह हमें लग रहा है कि थोड़ा बबल है, थोड़ा फ्रॉथ है. One needs to be a lot careful in these. It's very easy to get carried away because आज कोई भी व्यक्ति देखता है तो मिड एंड स्मॉल कैप ही निर्वाणा लगता है, बिकॉज सारे फंड्स का रिटर्न 20, 25, 30% है, तो यहीं पर सिप करो, यहीं पर पैसा डाल दो. बट वो आप पास देख रहे हो, फ्यूचर कुछ और होगा. और ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ बिकॉज मैंने देखा. मैं सेकंड लार्जेस्ट मिड कैप फंड मैनेज कर रहा था. जब मैंने लिया था वो फंड 100 करोड़ का था. जब मैंने अभी छोड़ा तो वो 36,000 करोड़ का फंड था. स्मॉल कैप जो मैंने 110 करोड़ का लिया था वो 14,000 करोड़ का था. तो टोटल जब 56,000 करोड़ मैनेज कर रहा था तो आई नो कि बॉस साइकिल्स विल रिपीट अगेन. एंड इफ़ यू हैव टू डू वेल इन द मार्केट्स, साइकिल में आपको सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है, पिच पर खड़े रहना बहुत ज़रूरी है. एक चीज़ हमेशा याद रखना, मंदी के समय अगर आप अपने कैपिटल को बचा लोगे ना, वो भी एक बहुत बड़ी कमाई है. लोग समझते ही नहीं है, लोग सोचते हैं तेज़ी में जो पैसा बना वो कमाई है. नहीं, तेज़ी में जो बना वो तो है आपका, लेकिन उसके बाद जब मंदी आती है उसमें जब कैपिटल आप बचाते हो ना, वो असली कमाई है. बिकॉज वो आपको हिम्मत देता है पिच पर रहने के लिए और नेक्स्ट साइकिल में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड इवन ऑन पोर्टफोलियोज व्हेन आई यूज्ड टू मैनेज, आई यूज्ड टू बी वेरी कंसिडरेट कि डाउन साइड प्रोटेक्शन होना जरूरी है. आज जो मार्केट है मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड नेक्स्ट 6, 12, 18 महीने के लिए अपने अगेंस्ट है. मैं लार्ज कैप्स की बात नहीं कर रहा हूँ. लार्ज कैप्स में वैल्यू है बिकॉज 40-50% ऑफ द निफ्टी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया बिटवीन 16,000 से 21,000 की जर्नी. तो दैट आई थिंक देयर इज सम वैल्यू विच इज़ देयर, मेनी ऑफ द नेम्स. But when I look at the smaller companies, they are trading at more expensive valuation than large caps. मैं earnings yield जब large, small और mid की देखता हूँ, they are far more expensive than large cap companies. For what? And the volatility there will be far more than any large cap company because they are evolving and they are established. So मेरे को ये equation थोड़ी कम समझ में आ रही है. Though I am a mid cap guy all throughout my life, but मुझे लगता है इस समय थोड़ा careful रहना बहुत ज़रूरी है. अपने एसेट एलोकेशन को रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है. अपने रिस्क असेसमेंट को रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ यू कैन डू दैट जुडिशियसली एंड ऑनेस्टली, आई थिंक यू कैन सर्वाइव इन द साइकिल ऑन द पिच फॉर अ लॉन्गर पीरियड. एक दिन मार्केट कल 3% गिरा, मिड कैप स्मॉल कैप, सब फोन करने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ सुना क्या? अरे मार्केट से इज देयर. व्हेन द 3% ऊपर जा रहा था, नवंबर के महीने में 10% का रिटर्न छूटा, तो किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ. तब तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी, ये वो इलेक्शन फलाना. एक दिन मार्केट 3% करेक्ट किया, एवरीबडी गॉट जिटरी. दिस शोज द फिकलनेस ऑफ द मार्केट कि वेरी फ्यू इन्वेस्टर्स हु हैव कम आफ्टर 2020 हैव सीन साइकिल्स. एंड इस बार जब साइकिल नीचे आए, करेक्शंस है, पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ मार्केट्स है, इस बार जब मार्केट नीचे गिरेगा ना, ट्रस्ट मी, इतनी हॉरर स्टोरीज आप सुनोगे ना, आपने नहीं सुना है. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट्स ऑलवेज बिहेव इन साइकिल्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज, वेयर आर द रिस्क, एंड रिस्क रिवॉर्ड को आपको एडजस्ट करके चलना होगा. अदरवाइज you will be out of the pitch very shortly, in a very short time, and you may not be able to participate in the next 10, 15, 20 years of the golden period. Always remember, हर साल 2 साल में एक ऐसा करेक्शन आता है, बट उसमें आपको सर्वाइव करने की ज़रूरत है. And many places I am seeing narratives are more powerful than actual reality. P ratios are trading at a higher valuation than large caps in mid, small, micro. SME में बहुत बड़ा बबल बन रहा है. 10 साल में करीबन कितना 100 गुना हो गया SME इंडेक्स, IPO इंडेक्स 10 साल में 100 गुना, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट. और जो NSE 500 इंडेक्स है वो 4 गुना ही हुआ है. तो 4 गुना और 100 गुना समझ नहीं आ रहा है.
कई सारे कंपनीज जो आईपीओ के लिए आ रहे हैं, प्रमोटर्स का चेकर्ड पास्ट है, बट लोग पैसा दे रहे हैं, 80% प्रीमियम होता है, ग्रे मार्केट चल रहा है, पूरा पार्टी चल रहा है. जस्ट बी ऑन द डोर दैट दिस द म्यूजिक स्टॉप्स, यू आर द फर्स्ट टू एग्जिट. अदरवाइज कई स्टॉक्स में मैंने देखा है जब लिक्विडिटी ड्राई अप होती है आपको एग्जिट नहीं मिलता है. एंड फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज गुड, बट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इन इंडिया इज सफरिंग बिग टाइम, एंड दैट्स वाई consumption is having a tough time in India today. ऑल्टो वैगन आर नहीं बिक रहा है, एंट्री लेवल मोटर बाइक की सेल नहीं है, साबुन तेल वॉल्यूम ग्रोथ 0% है, बिकॉज दैट कैटेगरी ऑफ पीपल हैज नॉट बीन एबल टू कम आउट ऑफ कोविड स्टिल. वो जो मार पड़ी उनको, एंड दैट्स द रीजन द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज इन अ वेरी टफ स्पॉट. एंड दैट्स वाई आई से दैट इंडिया को आप 140 करोड़ लोगों की जनता को इकोनॉमी मत देखो. 20 करोड़ लोग आप जैसे हम, जो हम एक डोमेस्टिक हेल्प को सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी 30 करोड़ लोग वो जो डोमेस्टिक हेल्प वाले लोग हैं, ये टोटल मिला के 50 करोड़ लोग देश को चला रहे हैं फ्रॉम अ ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव. बाकी जो लोग हैं या तो हैंड टू माउथ हैं या रूरल वर्कर्स हैं एंड सो फोर्थ, उनके ऊपर आप कंजम्पशन पर डिपेंड नहीं कर सकते. एंड दैट पोर्शन इज अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस राइट नाउ, एंड दैट्स वाई अ लॉट ऑफ बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन आइटम इज नॉट डूइंग वेल. रिसेंटली आरबीआई ऑल्सो केम आउट कि 50,000 रुपये के जो नीचे वाले लोन वाले हैं उनके ऊपर रिस्क वेट बढ़ा हुआ. क्यों? क्योंकि उन्हें अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस दिख रहा है. एक आदमी 5 लोन लेके बैठा है 50,000 रुपया इनकम के नीचे वाला, उसका महीने का ईएमआई चल रहा है 10 से 12,000 रुपया, 15,000 रुपया. वो एक लोन लेता है, दूसरे को रीपे करता है, दूसरा लेता है, तीसरे को करता है, पूरा वो सर्कल चल रहा है. वहाँ नीचे स्ट्रेस बिल्टअप हो रहा है. बट आज नहीं दिखेगा, वो साल 2 साल बाद एनबीएफसी और बैंक्स के बुक्स में दिखेगा. 3 लाख करोड़ का लोन बुक है वो. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट बी अवेयर कि बॉटम ऑफ द पिरामिड कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है या ओवरऑल इकोनॉमी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है. सेकेंड बिग चैलेंज मुझे 2024 कैलेंडर ईयर में दिखता है कि अगर आपको 13% क्रेडिट ग्रोथ करना है तो उसके लिए 25 लाख करोड़ की डिपॉजिट चाहिए. 25 लाख करोड़ की डिपॉजिट कैसे आएगी? या तो आप प्रिंट कर सकते हो पैसा, या आप डॉलर बाय कर सकते हो आरबीआई जो करता है, या बीओपी सरप्लस, मतलब तेल एकदम क्रैश हो गया, अपना एक्सपोर्ट अच्छा किया तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, उसके कारण आप मल्टीप्लायर रिजर्व मनी से मल्टीप्लायर इफेक्ट कर सकते हो. थोड़ा इकोनॉमिक समझा रहा हूँ. बट अगर ये सब नहीं हुआ तो कैसे आप डिपॉजिट लोगे? दैट्स वाई डिपॉजिट रेट्स आर हायर. आज 7, 7.5, 8% में हर कोई बैंक आपको डिपॉजिट रेट देने को रेडी है. क्यों? क्योंकि डिपॉजिट मार्केट बहुत टाइट है, और सामने अगर 12-13% क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है तो डिपॉजिट को आप फंड कैसे करोगे? यूएस में रेट 5% आ गया, हमारा रेट 7% है. तो आपके पास जो आर्बिट्राज था कॉर्पोरेट्स के पास कि मैं बाहर से जाके ईसीबी में बोरो कर लूँ, आज अगर हेज करके देखते हो तो कोई डिफरेंस ही नहीं है. आप डोमेस्टिक बोरो करने आ गए, आप ग्लोबली बोरो नहीं कर रहे हो. तो जो बाहर का ईसीबी का पैसा आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है. दिस ईयर वी आर फ्लैट, वी डोंट हैव एनी इनफ्लो पॉजिटिवली ऑन ईसीबी. सो आई एम सेइंग देयर आर सर्टेन पॉकेट्स विच आर ऑफ कंसर्न. इस तेजी के मार्केट में हर कोई आदमी ये सब चीज़ों को भूल जाता है, पर जिसका टेम्परामेंट ठीक है, जो सही से कॉल ले पाएगा, वही लॉन्गर टर्म में पैसा बनाएगा, इज माई व्यू. सो दिस इज टाइम टू बी अ लिटिल केयरफुल ऑन द मार्केट्स इन द मिड स्मॉल कैप एसएमई साइड. पोर्टफोलियो को रीअसेस कर लो, जहाँ रिस्क ज़्यादा लगता है थोड़ा पोर्टफोलियो से रिस्क काट लो, नहीं तो पूरे साल का रिटर्न मैंने देखा है 1 महीना में गायब भी हो जाता है. राइट? वी हैव सीन दैट ऑल साइकिल्स. राइट? सो बी अवेयर ऑफ दैट. मीडियम टर्म मैंने लॉन्ग टर्म जो 4 बड़े ट्रेंड्स बताए, दैट इज़ वेरी पावरफुल ट्रेंड्स, but that will come with cycles provided you can survive in that. I have told you repeatedly again and again, so be aware. ऐसा नहीं हो कि साल भर बाद जब अपने मिले तो कई लोग इसमें से और भी नहीं रहे हॉल में, you know, because ये होता है, हर साइकिल में होता है. ऑप्शंस में लोग काम कर रहे हैं, ऑप्शन में लेवरेज 100 गुना 40 गुना. ऑप्शन मार्केट इन इंडिया इज 400 times more than the cash market now. 400 times more than the cash market now. It's huge.
So I'm just saying that risk को आप assess करके चलना is the only point which I'm trying to say. ये पार्टी में मूड है अभी तक पार्टी 2 बजे चलेगी, 3 बजे तक चलेगी, 4 बजे तक पता नहीं, बट अगर ठीक से नहीं निकले तो हैंगओवर लंबा रह जाएगा इस पार्टी का. So just on that note, I'll take a pause. If anybody has a quick question, I'll be more than happy to answer. Thank you. Thank you. We can have mics. Yes, please. Yes. That's good. But Yes. the chemical sector is underperforming. Yes. And so many companies, big companies, BPL, like anything, they have shown the loss also in the last quarter, their result. And their bottom line is under lot of pressure. Pressure, So yes. what is your what is your purview about chemical sector in future? सो अगर केमिकल सेक्टर को देखें तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कोविड की केमिकल सेक्टर रही. क्यों? क्योंकि चाइना जो सबसे बड़ा सप्लायर था केमिकल का वो एग्जिट कर गया बिकॉज ऑफ कोविड. दे वर नॉट ओपनिंग द इकोनॉमी, दे वर नॉट सप्लाइंग एनीथिंग. नाउ सिंस लास्ट ईयर व्हेन चाइनीज इकोनॉमी स्टार्टेड ओपनिंग, every manufacturer started dumping material, left, right, center. And many chemicals which were commodity chemicals, people thought it's specialty chemicals, finally saw that they are commodity, right? Because China became a big supplier to the world again, right? Even in India, I know at least 10 chemicals where China is supplying lower than their cost of production in India, right? So that's the pressure we saw. And second क्या हुआ कि a lot of people who were using chemicals, because of the uncertainty in COVID, कोई 1 टन चाहिए था तो उन्होंने 5 टन ले लिया. अब जैसे जैसे इकोनॉमिक ओपन अप हुई, डिमांड स्लो हुआ, उन्होंने पहले इन्वेंट्री डीस्टॉक किया. माई सेंसेस इन नेक्स्ट 1 or 2 quarters, I think you will see both the things changing. So many countries are imposing anti-dumping duty on certain Chinese export. That will give protection. And the other thing is that destocking, in my view, is mostly over. When I hear the commentaries of BASF, all the Syngentas of the world, the global guys, they are saying 4th quarter or 1st quarter calendar year of 24, we should see destocking behind us. If that's the case, then obviously Indian chemical companies will benefit. If you ask me, this is one space where you can be contra, and there are very good quality companies in this space. Balance sheet solid hai, cash flow solid hai, they have moat in the business. This could be the opportunity to buy few of them. But research करके करना होगा, टिप पर मत जाना, और बहुत छोटी कंपनी को मत लेना, बिकॉज ये साइकिल जब खराब होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट छोटी कंपनियों में होता है, बहुत छोटी कंपनी. बट देर आर सम मिड एंड लार्ज साइज कंपनीज इन दिस सेक्टर. दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस रैली एज यू राइटली सेड. निफ्टी 16,000 का 21,000 हो गया, बट दे हैव लोअर देन दैट प्राइस एक्चुअली. There's some merit in evaluating that sector as we speak today. But 2 quarter का और थोड़ा पेन हो सकता है. Yes, please. Sir, as we were speaking, the lower strata of the pyramid is highly impacted, and it has still not came out of the COVID impact. But since the larger manufacturing are coming into India from the world, as well as the Indian demand is also getting uplifted, so whether that the smaller pyramid or the greater base of the pyramid will not be benefited from that? Yes, And the RBI caution on the unsecured loan as well as the loan below 50,000, as we were speaking, whether that will not be changed, RBI's view, in next 1 or 2 quarters? See, RBI's job is to alert all of us and make sure that the system doesn't create bubble. So all hats off to RBI, right? Yes. The way they have managed the cycles across the country, no other central bank in the world has been able. And that's why our governor was given the best governor award last year, right? Yes. So I think obviously RBI has a depository of data across NBFCs, banks. They are seeing some stress. That's why they are alerting all of us in unsecured as well as loans below 50,000.
that will impact further the bottom of the pyramid, right? Because वो आज लोन ले रहा है क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस में है या उसके कोई एस्पिरेशंस है जो वो फुलफिल करने के लिए एडुकेशन लोन या कहीं कुछ इमरजेंसी लोन ले रहा है. But the good news is I think government has recognized this and my sense is that एग्रीकल्चर में स्पेंडिंग बढ़ेगी आने वाले समय में and election is round the corner, right? And whatever we may say, a large part of money gets spent at the lower end of the economy during elections. So that liquidity will also increase. You have seen increase in crop prices, agriculture crop prices doing better in the last 6 months. That will help. So I think broadly, I think we have seen the worst in terms of bottom of the pyramid. Or construction work has started. The major Major beneficiaries construction are has is started in the real country. estate and the construction. Highways, roads, railways, सब जगह construction हो रहा है. And जो अभी latest आप rural में जाओ तो 50-60% ही agriculture पर dependent है. Right. 40-50% जो आज वहाँ का जो workforce है वो construction पर dependent है. तो construction जब pick up होता है so they benefit automatically out of it. So I am pretty hopeful that the bottom of the pyramid, the worst you have seen, I think from here on you should see improvement as you move ahead into after elections also. And bottom of the pyramid finally should come back. So But that means it may तो give consumption benefit- items पर ध्यान consumption रखना. items. जो consumption led sectors है bottom of the pyramid में उस पर ध्यान रखना. I think there could be opportunity coming in. 3-4 साल हो गए वो सब stocks ने कुछ भी नहीं किया. Bottom of the pyramid. Majorly the FMCG ones. सब चीज़ मेरे से ही पूछ लोगे तो यार थोड़ा तो Thank you. research करो. आपका सर. सर आपने सबसे पहले जो पॉपुलेशन सर ले लीजिए माइक ले लीजिए. आपने जो पॉपुलेशन के लिए कहा कि अभी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, आने वाले 30 साल में 170 करोड़ पे पहुंचेगी, लेकिन आप उसको 150 करोड़ के प्लेट्यू पे 155 मेरे को लगता है 155 मैं थोड़ा कॉन्ट्रा हूँ. इसका क्या रीजन? क्योंकि अभी 140 है, ये फर्टिलिटी रेट हैज कम बिलो द रिप्लेसमेंट रेट. लेकिन उसका इतना फर्क पड़ेगा सर. अभी 2 करोड़ आप के मैथ्स करके देखो, अगर लोग ज़्यादा एक्सपायर करेंगे और कम लोग पैदा होंगे तो कहीं ना कहीं तो रिप्लेसमेंट रेट अगर ज़्यादा है देन द फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, देन योर रेशियो विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग राइट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. मोर पीपल आर गोइंग ऑफ बट लेस प्रोडक्शन इज हैपनिंग. तो अपना रेशियो है 2.1 का रिप्लेसमेंट रेट, 2.1 के नीचे अपना आ गया बर्थ रेट, 2 के आसपास आ गया. साउथ में 1.6, 1.7 एजुकेशन भी इसमें मेजर पार्ट प्ले कर रहा है. प्लेट करेगा. आप ये देखो ना, आज सबसे इंडिया की एडवांस स्टेट्स कौन से हैं? साउथ की है. क्यों है? तमिलनाडु, केरला. क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट इज 1.5, 1.6. लोगों के 1 बच्चे हैं या मैक्सिमम 2 बच्चे हैं, राइट? That's why they have been able to spend resources more on productive things rather than kids. And that's why the states have done so well. अब आप यूपी देखो, पोटेंशियल बहुत थी, लेकिन नहीं हो रहा. लार्ज रिसोर्स उसमें चली गई बिकॉज वहाँ का रिप्लेसमेंट रेट इज 2.1 बट प्रोडक्टिविटी रेट इज 2.5. तो लॉट ऑफ रिसोर्स गोज इन किड्स. किड्स जब तक 18-20 साल के नहीं होते हैं वो काम पर नहीं लगते हैं, तो उनको आप फीड करते रहते हो लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं होते देश में. सो मेरा ये मानना है कि देश एक बहुत अनोखे पड़ाव पर है जहाँ पर लोग ये सोशल फैब्रिक चेंज को नहीं देख पा रहे हैं. इसलिए मैं जब नंबर्स करता हूँ तो मुझे लगता है अपना पॉपुलेशन 155-160 तक प्लेटो हो जाएगा और जीडीपी ग्रो करेगा. तो पर कैपिटा इनकम जो है ना, जो लोग सोच रहे हैं धीरे धीरे बढ़ेगा, मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा हॉकी स्टिक आने वाला है और उसके कारण कई सारी कैटेगरी में एक्सप्लोजन आने वाला है. आप लोगों को पता नहीं होगा, स्मार्टफोन मार्केट 5 लाख करोड़ का मार्केट हो गया है. इट्स इक्वल टू एफएमसीजी मार्केट इन द कंट्री बिकॉज आप बॉटम ऑफ द पिरामिड तक मोबाइल पहुंचा दियो. तो जो पैसा वो बेचारा तेल साबुन पर खर्चा करता था, आज वो सिम कार्ड रिचार्ज में खर्चा कर रहा है. 100 रुपए का या 80 रुपए का या 200 रुपए का. 5 लाख करोड़ का स्मार्टफोन मार्केट और वो वाला मार्केट हो गया. तो कहीं ना कहीं जो बास्केट ऑफ कंजम्पशन है ना वो चेंज हो. आज रोटी कपड़ा मकान तो उतना ही है, लेकिन उसके बाद आपके होटल प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, रेस्टोरेंट्स चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है. और जब आप 2500 से $5000 पर जाते हो ना, बहुत कुछ चेंज हो जाता है. तो दैट्स वाई ऑल्टो नहीं बिक रहा है, वैगन आर नहीं बिक रहा है,
लेकिन 20 लाख की एसयूवी के लिए वेटिंग पीरियड है, और 80 लाख से 1 करोड़ की गाड़ी में तो 6 महीने का वेटिंग पीरियड है मर्सिडीज और BMW में. थिंक अबाउट इट. सो if you stitch up everything together, you will understand what I am talking about. थैंक यू सर. Thank you. Last question. Anybody? Yes, please. Ex-RBI governor Yes, sir. is not very hopeful about India's future. He's not hopeful. वो तो पहले भी नहीं थे ना सर. तभी भी हम कोविड से निकले ना. उनके लास्ट 4 साल की आप कमेंट्री देख लो. बोले कि कोविड में तो खत्म हो जाएगा देश. हम किस तरह मैनेज कर रहे हैं, सब खराब है. सी, गुड दैट we need critics at every point so that we don't get complacent. But we also need to understand that whether right critics are there or not. Right? They may be great, they may be good, but we are also understanding what are the nuisances. तो मैंने जो पेन पॉइंट बताया वो भी बताया आपको. मैंने जो अच्छी चीज़ें हो रही है देश में, गेम चेंजर हो रहा है वो भी बताया आपको. सो यू हैव टू लुक इट इन अ होलिस्टिक वे and then take a call on the markets. Markets are always reflection of two things, याद रखना, economy and earnings. और last 4 साल में जो market बढ़ा है is not in isolation of that. हमारा total NSE 500 कंपनियों का profit 3.5 से 4.5 लाख करोड़ के बीच में घूमता था 2013 से लेके 2018-19-20 तक. लास्ट ईयर ये नंबर 4.5 लाख करोड़ का 11,20,000 करोड़ पर गया, और मेरा ये अनुमान है इस साल ये 13,40,000 करोड़ के आसपास जाएगा. तो अपने पूरे प्रॉफिट जो 500 कंपनियां हैं टॉप 500, उनको 4.5 लाख से 11 लाख करोड़ किया, और इस साल प्रॉबेबली 13-13.5 लाख करोड़ होगा. एंड स्टॉक्स ऑलवेज फॉलो अर्निंग्स. अगर प्रॉफिट बढ़ा, मुनाफा बढ़ा, वो स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होता है. केमिकल सेक्टर नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुनाफा नीचे आया. मार्केट्स आर स्मार्टर देन ऑल ऑफ अस, एंड दैट्स व्हाई profitability of corporate India improved because they did a fantastic job in COVID. सबने खर्चा काटा, सबने अपने गाड़ी जो नट बोल्ट ढीले थे सबको टाइट किया, बिकॉज कोई को नहीं पता था 6 महीना होगा, 12 महीना होगा, 15 महीना होगा, अपने बिजनेस जीरो है, कभी विजिबिलिटी आएगा. वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस फेज जस्ट 2 years बैक. किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, राइट? तो सबने अपने कॉस्ट को कम किया. अब वो जब कॉस्ट कम कर देते तो सस्टेन होती है, और उसके ऊपर फिर रेवेन्यू आने लगा तो मार्जिन्स बढ़ गए सबके. तो ये पूरा प्ले आउट हुआ है. आने वाला साल लगता है मेरे को थोड़ा टाइट रहेगा देश के लिए, इकोनॉमी के लिए. मेरे हिसाब से वन नीड्स टू बी वॉचिंग आउट दैट. थोड़ा लिक्विडिटी टाइट रहेगा देश में बिकॉज ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ नॉट हैपनिंग एट अ फास्टर पेस, एंड थोड़ा बॉटम ऑफ द पिरामिड इम्प्रूव होना चाहिए फॉर इकोनॉमी टू सपोर्ट. अदरवाइज आई थिंक ब्रॉडली वी आर गोइंग द राइट पाथ. केपेक्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं. 10 लाख करोड़ का हमने बजट में अनाउंस किया. अगर आप 1965 से 2005 तक जाओ, 30 साल का क्यूमुलेटिव केपेक्स 10 लाख करोड़ था. 4-5 साल पहले हम 2 लाख करोड़ रुपया रेलवेज में खर्चा कर रहे थे साल का, 1,80,000 से 2 लाख. इस साल हम 10 लाख करोड़ खर्चा करेंगे, या नेक्स्ट ईयर 10 लाख करोड़ खर्चा करेंगे रेलवेज में खाली. So I'm just saying that broadly if you stitch many things, the tax collection बढ़ना, digitalization आना, वो एक्स्ट्रा पैसे को गवर्नमेंट डिप्लॉय करना, ग्रोथ में डिप्लॉय करना, ये पूरा साइकिल है. इसमें से कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हर चीज़ गड़बड़ होता है. This is the macro picture you need to visualize and think when you take a call on the market from a 3-5 year perspective. But I can see a lot of young faces, friends, ये नेक्स्ट 20, 25, 30 साल गोल्डन पीरियड है, इसको मत गंवाना. इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, प्लीज स्टार्ट, बिकॉज ये जनरेशनल कैपिटल है. अगर ये साइकिल आपने मिस कर दिया, योर किड्स वोंट बी काइंड टू यू. पापा यू सॉ द बिगेस्ट, ममा यू सॉ द बिगेस्ट बुल मार्केट ऑफ इंडिया एंड यू डिडंट पार्टिसिपेट. इट हैपेंड इन 80s and 90s in the US, 90s and 2000s in China, and I'm pretty sure next 10, 15, 20 years will be in India. And as Warren Buffett says, I'm lucky that I was born in America. I'm 110% sure after 15 years, 2035, 2040, each one of you will say that I was lucky I was born in India.
So thank you so much for a patient listening, and thank you, thank you. थैंक यू वेरी मच सर. आई विल से सर ने एक लार्जर पिक्चर हमको माइक्रोस्कोप में डाल के दिखा दिया है. काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अराउंड हो रही थी, हम देख रहे थे, बट इट इज़ लाइक वी हैव महसूस, हमने इसको महसूस किया है. एंड बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आई विल से कि इकोनॉमिक्स थोड़ा हमारे लिए बोरिंग सब्जेक्ट था. जब आता रहा पढ़ने में तब भी थोड़ा बहुत बोरिंग होता था. एंड शेयर मार्केट इज़ समथिंग लाइक कि करना सबको है, बट हम गलत तरीके से करते हैं. जब तेज़ी आती है तो सबको अंदर आना है, और जब मंदी आती है तो जो अंदर है उसको भी बाहर निकलना है. जबकि हमको उसका उल्टा करना चाहिए कि मंदी आती है तो लेट्स टेक द एंट्री, और जब तेज़ी आती है तो जस्ट पॉज एंड लुक अराउंड. एग्जैक्टली सेम सेड बाय द सर एंड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन. एंड द वे सर हैज़ शोवन अस द पिक्चर, उन्होंने सब कुछ हमको दिखा दिया. इट्स नॉट लाइक कि बड़ी बड़ी बातें और सिर्फ आपको बड़ा बड़ा पिक्चर दिखाना है. ही हैज़ डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग on a larger scale, but in a minor detail also they have given us कहाँ पे हमको ध्यान रखना है. that is truly commendable. So I am thank you so much on the behalf of the audience sir, thank you very much. And now a round of applause for the sir. And now we can have a tea break. You can take the tea. Thank you.